Hello students, welcome to my YouTube channel Physics Conversation with Dr. Kaur. In this video, we will discuss about electron mobility. To understand the concept of electron mobility, we must know what is the drift velocity. Drift velocity is the velocity of the electrons under the influence of applied electric field. सपोज एक कंडक्टर को के साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो इसके कंडक्टर के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई की, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एक्चुअली रेशो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. Here we can say it is the electron mobility is the ratio of the output to the input. हमने इनपुट कितनी अप्लाई की, सपोज हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इस पे, और इसके कंपैरेटिवली हमारी इनपुट कितनी आई, आउटपुट कितनी आई. आउटपुट इज द इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दैट इज अवर आउटपुट. ओके, सो आउटपुट अपॉन इनपुट, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट electron mobility. Let us see what are the SI units of electron mobility. We know that what is electron mobility? Drift velocity per unit electric field. And what are the units of drift velocity? We know that the velocity have the units meter per second. And what are the units of electric field? As we know that electric field is gradient of potential is equal to negative gradient of potential upon distance. So what are the units of electric field? Volt. Potential have the units volts and the distance have units meter. So what are the units of electric field? Volt per meter. Okay, so volt per meter. Volt per meter are the units of electric field. So now what are the units of electron mobility? Here we can see meter square. We per meter will go to numerator, and here becomes the meter square per second per volt. Okay, so these are the SI units of electron mobility, meter square per volt per second. Let us talk about internal resistance of a cell. It is denoted by symbol R. As we know that what is the resistance? Resistance is the obstruction to the flow of electrons. And what is the internal resistance? First of all, let us talk about cell. What is a cell? In chemistry, we already study it in detail. What is cell? In a cell, there are two electrodes. One is cathode and another is anode. Cathode is negatively charged and anode is positively charged. And here is the solution, electrolytic solution. And as the electrolytic solution contains the positive and the negative ions, and the positive ions will get attracted towards the cathode, and the negative electrons will be attracted towards the positive anode. So there is the flow of charges in the electrolytic solution. So when the electrons, negatively charged electrons, will flow from the towards the anode, there will be resistance due to the collisions between the ions, as we already discussed in case of conductors. So this resistance of the cell is called internal resistance of the cell. जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो उसमें भी रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू द कोलिजन्स between the ions. So this resistance is called internal resistance of the cell.
ओके, इसको हम स्मॉल आर सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट EMF of a cell. EMF of a cell, इसको हम कैपिटल E के साथ डिनोट करते हैं। EMF of a cell means इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। सबसे पहले जो बात समझनी है आपको यहाँ पे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब, इसके इसके नेम में कॉन्ट्राडिक्शन है कि ईएमएफ अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल। जो ये वाला सेल है, इसके दो पोल्स हैं, जो एक नेगेटिव पोल है और दूसरा पॉजिटिव पोल। इन दोनों पोल्स के बीच में जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये इलेक्ट्रो पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? जब इसको हमने किसी भी सर्किट के साथ, एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं किया और ये सर्किट हमारा ओपन है। जब ये सर्किट हमारा ओपन है उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल, इनको हम पोल्स बोलते हैं, एक जो कैथोड है एक एनोड है, इन दोनों को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ द सेल। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है जब ये सर्किट ओपन है, मींस इसमें से जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, और इसको हम कैपिटल ई के साथ डिनोट करते हैं। ओके, सो दिस इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल। और क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो एज वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती हैं? V इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज होता है। और पोटेंशियल की यूनिट्स क्या होती है? वर्क की यूनिट जाउल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ओके, जाउल पर कूलम। तो ईएमएफ की यूनिट्स क्या होंगी? ऐसा यूनिट्स क्या होंगी? जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम। ओके, सो you should remember that EMF of a cell is not force, it is the potential difference between the two poles of the cell. When the circuit is open means no current is flowing through the circuit. सर्किट को हमने कनेक्ट नहीं किया किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के अंदर। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। जब भी हमने सेल की बात करनी है तो ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सेकंड इज ईएमएफ ऑफ द सेल, एंड थर्ड इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। Let us talk about terminal potential difference of a cell. What is terminal potential difference? It is the potential difference between the two poles of the cell when the circuit is closed. जब सेल को हमने एक सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर दिया, उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेल है, सेल को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर दिया और ये हमारी की है, इसको अब हमने क्लोज कर दिया, मींस हमारा जो सर्किट क्या हो गया? क्लोज हो गया। जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में से, करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट, आई करंट विल फ्लो, एंड उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेजर करने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया। ओके, वोल्ट मीटर के साथ इसको हमने कनेक्ट कर दिया
और इस ये सेल का सिंबल है, और सेल को हमने एक जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की उसको भी हम शो करेंगे यहाँ पे स्मॉल आर के साथ। ओके, तो ये ध्यान रखना है जिस टाइम हमारा सर्किट क्लोज होगा उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द सेल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कैथोड एंड एनोड, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे रीडिंग आएगी वोल्टमीटर पे, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या थी, जब हमारा सर्किट क्या यहाँ पे ओपन है, जब सर्किट ओपन होगा उस टाइम कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट हमारा ओपन है। उस टाइम जो रीडिंग आएगी वोल्टमीटर पे उसको हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, और उसको कैपिटल ई के साथ डिनोट करते हैं। ओके, तो इन इसको हम ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट है, सपोज हमारे पास एक रेस्टोरेंट है जो हमारा सेल है, सेल इज अवर रेस्टोरेंट। सेल रेस्टोरेंट में हमारे पास 50 पर्सन्स के लिए फूड बन रहा है, सपोज 50 पर्सन्स के लिए फूड बन रहा है, वो हमारी क्या है, ईएमएफ है। जो फूड 50 पर्सन्स के लिए टोटल फूड बना, दैट इज अवर ईएमएफ ई। ओके, टोटल जब हमारे पास कोई भी वेस्टेज नहीं हो रही थी उस टाइम जो टोटल फूड बना दैट इज अवर ईएमएफ। और इसमें से जो 10 पर्सन्स हैं, 10 हमारे पास वर्कर्स हैं जो रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और वो 10 वर्कर्स खुद भी उसमें से फूड खा रहे हैं रेस्टोरेंट में से। तो यहाँ पे जो इनमें से माइनस करेंगे जब हम, तो टोटल कितना फूड हमारे पास बचा, 40 पर्सन्स का फूड बचा, क्योंकि 10 पर्सन्स का तो वो वर्कर्स खुद ही खा रहे हैं। जैसे हमारी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की उसके अक्रॉस भी हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा सर्किट क्लोज होगा उस टाइम जो सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल की उसके क्रॉस हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मींस हमारी वोल्टेज कुछ वेस्ट हो जाएगी। टोटल वोल्टेज हमारी ईएमएफ ई थी, टोटल वोल्टेज ई थी, उसमें से हमने जो हमारी सेल की अक्रॉस वेस्टेज हो रही है हमारी हमारी वोल्टेज की, वो कितनी हो रही है, जितनी इसकी रेजिस्टेंस है इंटू आई इंटू आर, ये हमारी क्या हो रही है, वेस्टेज हो रही है। और जो हमारे पास बैलेंस बचा, हमारे पास कितनी वोल्टेज बची, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो फ्रॉम हेयर we can write it in the form of equation that terminal potential difference V is equal to जो total हमारे पास EMF थी E माइनस जो हमारी वेस्टेज हुई वोल्टेज की जो ड्रॉप हुआ I इंटू आर। सो V is equal to E minus I into R. Terminal potential difference is equal to total voltage, that is EMF, minus voltage drop across the internal resistance R. Okay, so this is an important equation. Now suppose we want to find the expression for internal resistance. Internal resistance के लिए suppose हमने derive करना है, R के लिए expression find करना है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। और हमारे पास अगर हम ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करें क्लोज्ड सर्किट में, अगर हम क्लोज्ड सर्किट में ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, आर प्लस कैपिटल आर। ओके, और टोटल ईएमएफ कितनी है, टोटल जो ईएमएफ थी कैपिटल ई थी। तो ओम्स लॉ अगर हमने लिखना है यहाँ पे इस सर्किट के लिए, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V वोल्टेज कितनी है, हमारी ईएमएफ है टोटल, I करंट फ्लो कर रहा है, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल,
and external resistance जो हमने connect की है. So from here what we will get, I is equal to E upon R plus capital R. ये वाली करंट की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. So from here what we will get, V equal to E minus I की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे I into R. So now we will solve this equation to get the value of internal resistance. V equal to, from here we will take E as common, 1 minus R by R plus R, and from here we will take LCM. Here we will take LCM, R plus R, R plus R minus R will be cancelled out, and V equal to E R upon R plus R. Now we will solve this equation as V equal R plus R is equal to E R upon V. From here, small r is equal to E by V R minus R, and R comes out to be E by V minus 1 into R. So this is the formula for internal resistance of the cell. So if you like this video, share this video and subscribe the channel Physics Conversation with Dr. Kaur. Thank you.